Hello students, in this video we will discuss about properties of inverse trigonometric functions and exercise 2.2. Now before going to the properties, let us recapitulate the domain and principal branches of the inverse trigonometric functions. You have to remember this. We already discussed about the domains and principal value branches of this inverse trigonometric functions. If you forgot, then you can pause the video here and write down the domain and ranges of these functions. Now moving toward the properties, there are several properties of inverse trigonometric functions. The first three properties are Roman 1, Roman 2, Roman 3. I proved Roman 2. Roman 1 is already proved in NCERT book. You can check that, and you prove yourself Roman 3. Now what is Roman 2? You have to prove cos inverse 1 by x is equal to sec inverse x, where the restriction over x is this. Let us take y is equal to sec inverse x. Then you can simply write x is equal to sec y. Then sec y is 1 by cos y. Therefore cos y is equal to 1 by x. Now y becomes cos inverse 1 by x. This is very simple. Therefore cos inverse 1 by x is sec inverse x. This thing is already proved in NCERT book, and you will prove by yourself Roman 3. Now moving toward the next three properties. Roman 1 is already proved in NCERT book. I again selected Roman 2, this one, and you will do by yourself Roman 3. Okay. To prove Roman 2, let us take again y is equal to minus tan inverse of minus x. Then you can take minus x is tan y. Therefore x is equal to minus tan y. Then minus of tan y is tan of minus y. We know that already from class 11. Therefore minus y is equal to tan inverse x. Therefore y becomes minus tan inverse x, which is tan inverse of minus x. This is also very easy. Now moving toward next three properties. These three properties are very important. Roman 1 is already discussed in your book, NCERT book. I selected Roman 3. Look at what you have to prove. Cot inverse of minus x is pi minus cot inverse x. You can take cot inverse minus x equal to y. Here is the proof. Y is cot inverse minus x. Then you can get cot y is minus x. Matlab x is minus cot y. Therefore cot of pi minus y. Now here you can ask, why did you write cot of pi minus y? Why it is not cot of minus y? This is the reason here. The principal value branch of cot inverse x is 0, pi, open interval. If we write x is equal to cot of minus y, then minus y will become cot inverse x, है ना? तो y becomes minus cot inverse x. अभी देखिए cot inverse x का वैल्यू 0 से पाई के अंदर हो सकता है, लेकिन अगर y का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है तो ये जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है इसका बाहर चला जाएगा, y 0 to पाई के अंदर नहीं रहेगा. इसीलिए ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाने के लिए we cannot write x is equal to cot of minus y. हमको क्या लिखना पड़ेगा? cot of pi minus y. Now pi minus y becomes cot inverse x. Okay, therefore y becomes pi minus cot inverse x. This is tricky. Okay, you have to remember why we do not write cot of minus y. Next three properties are this. These three properties are very important for your exam point of view. MCQ में बहुत ज़्यादा application होता है ये Roman 1 वाला. Roman 2 and Roman 3 are also very important. Roman 1 is again proved in NCERT book, so I selected Roman 3.
रोमन 3 में हमको प्रूफ करना है कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज पाई बाई 2 वेयर मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. नाउ लुक एट दिस, ये वाला जो है आपका प्रूफ है y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x ले लिया, देयरफॉर x कोसेक y हो गया. कोसेक y को हम लिख सकते हैं सेक ऑफ पाई बाई 2 माइनस वाई. ये भी हमने 11 में सीखा था. 11 में आप लोगों ने जो भी कंसेप्ट लिया था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वो नहीं भूलना है. अगर कोई भूल गए हैं प्लीज़ आप 11 का बुक उठाइए और फिर से देख लीजिए. ये जो आपका समरी वाला सेक्शन है उधर ये सब लिखा हुआ है. ओके, नाउ सेक इनवर्स x बिकम्स पाई बाई 2 माइनस वाई. ओके, देयरफॉर y प्लस सेक इनवर्स x इज पाई बाई 2. y के जगह पे आप पुट कर दीजिए कोसेक इनवर्स x. यू विल गेट द thing which you have to prove. Now 5 and 6. These 5 relations, 5 properties are very important. Proof एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, so I skipped that part. अगर किसी को proof चाहिए आप मुझे पूछ सकते हैं, I will give you. Okay, these 5 properties are very important. You have to remember also this restrictions. xy is less than 1, xy is greater than minus 1, this restriction, this one and this one. क्यों? क्योंकि आपकी जो क्वेश्चन होगा उधर भी कॉमा देके कुछ रेस्ट्रिक्शंस लिखा होगा जहाँ पे आप लोग ध्यान नहीं देते हो. ठीक है, प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद लेट अस मूव टुवर्ड द एक्सरसाइज 2.2. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज यू हैव टू प्रूव 3 sin inverse x is sin inverse of 3x minus 4x cube, where x is from minus half to half close interval. LHS में क्या है? 3 sin inverse x. RHS में क्या है? sin inverse 3x minus 4x. Let us take theta is sin inverse x. ठीक है, तो x का वैल्यू हो जाएगा sin थीटा. नाउ LHS और RHS में मैंने सिंपली ये x का वैल्यू पुट कर दिया और कुछ नहीं किया. 3 साइन इनवर्स x के जगह पे क्या लिखेंगे? साइन थीटा. वो लिखा, साइन एंड साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर LHS बिकम्स 3 थीटा. RHS में भी x के जगह पे अगर साइन थीटा पुट करेंगे, दिस थिंग इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा. तो हमने ये पूरा टर्म्स, दोनों टर्म्स वैल्यू हो गया साइन 3 थीटा. अगेन ये साइन एंड साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 3 थीटा. LHS and RHS are same, hence proved. Now the next problem is question number 4. Question number 2 and question number 2 is just same as question number 1 and 4 अगर कर लेंगे तो 3 same है. Now LHS is this thing. ठीक है, 2 tan inverse x उसका फॉर्मूला आप लोग याद कीजिए, tan inverse 2x divided by 1 minus x square. I forgot to write down the formula. जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखेंगे इधर कॉमा देके ब्रैकेट में जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो लिखेंगे. इधर ब्रैकेट देके आप लोग क्या लिखेंगे? सिंस 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x divided by 1 minus x square. ओके, इसके बाद ये कैलकुलेट करने के बाद आया 4/3. नाउ दिस थिंग, इसके ऊपर फिर से फॉर्मूला अप्लाई होगा. This is tan inverse x and this is tan inverse y. Formula is again इधर कॉमा देके आप लोग लिखेंगे tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse of x plus y divided by 1 minus xy. वही फॉर्मूला हमने यूज किया, x plus y divided by 1 minus x into y. ठीक है, कॉमा x into y less than 1. आप देख लीजिए 4/3 इंटू 1/7 करेंगे तो उसका वैल्यू लेस देन 1 होगा. रेस्ट्रिक्शन है वो भी लिखना है. ये कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 31/17. वही आपको प्रूफ करना था, RHS हेंस प्रूफ्ड. इधर प्रूफ लिखना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. आपको एक मतलब फंक्शन दिया रहेगा, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म, सिंपलीस्ट फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है. तो ये जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है.
इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डालने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने x का वैल्यू टेन थीटा पुट किया है। क्यों किया है, क्योंकि अगर हम टेन थीटा की जगह कुछ और पुट करेंगे तो टेन इनवर्स ऑफ टेन समथिंग नहीं होगा। ये देखिए लास्ट लाइन पे टेन इनवर्स ऑफ टेन समथिंग हुआ है, सो दैट वी कैन कैंसिल दिस टेन एंड टेन इनवर्स। ओके, इसीलिए x का वैल्यू टेन थीटा लिया है। कैसे हमको समझ में आएगा, आफ्टर लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा, x इज इक्वल टू टेन थीटा, देयरफॉर थीटा इज टेन इनवर्स x, इसका यूज होगा। तो ये जो आपका x है इसके जगह पे आपने क्या आपको पुट करना है टेन थीटा। पुट करने के बाद सिंपल आप फॉर्मूला अप्लाई करो, सेक थीटा इज 1 cos थीटा, वो किया हमने। उसके बाद ये जो आया सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज करना है। 1 - cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड sin थीटा इज 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अगेन ये वाला आप लोगों ने 11 में सीखा था। कैंसिल करने के बाद आया ये tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 बिकम्स थीटा बाई 2। अभी इधर आप नहीं छोड़ेंगे बिकॉज ये थीटा क्या है, थीटा हमने एज्यूम किया था, तो आपको थीटा के जगह पे x के टर्म में उसको लिखना है एंड थीटा इज tan इनवर्स x, ये वाला आप इधर पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। देख लीजिए, इसको भी सिंपलीस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वेयर x इज फ्रॉम 0 to पाई ओपन इंटरवल। अभी हमने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही cos x से डिवाइड किया है। तो ये हो गया 1 - tan x डिवाइडेड बाई 1 + tan। इधर हमने कोई अलग से x इज इक्वल टू tan थीटा पुट नहीं किया है, क्योंकि सिंपल वे से ही प्रूव हो रहा है। ये जो वैल्यू आया है इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ पाई बाई 4 - x। तो tan और tan इनवर्स कैंसिल होकर आपका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है पाई बाई 4 - x। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इसको। तो हमने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर है इधर से a स्क्वायर को कॉमन लिया, रूट के बाहर a चला गया ना, इसको मैंने ऐसे सजाया है। अभी देखिए दिस x बाई ए, इसको अगर हम कुछ और पुट करेंगे तो ये भी वो जो टर्म होगा उसका स्क्वायर में एक्सप्रेस हो जाएगा। तो मैंने साइन थीटा पुट किया है। साइन थीटा किया क्योंकि मुझे tan इनवर्स ऑफ 10 समथिंग लाना था इसलिए। तो x बाई ए इज साइन थीटा, वही चीज़ आप इधर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सिंपल आप कैलकुलेट कीजिए। तो ये आ गया tan थीटा, दोनों कैंसिल करके थीटा। इधर आंसर जो लोग भूल जाते हो उनको फुल मार्क्स नहीं मिलता है, बिकॉज थीटा आपने एज्यूम किया है, वो क्वेश्चन में नहीं गिवन था। नाउ थीटा का जो वैल्यू है वो आप पुट कीजिए, थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, वो वैल्यू लिखिए। देयरफॉर दिस इज योर सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x बाई रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ये जो पूरा चीज़ है, ठीक है। तो इधर देखिए, इधर a स्क्वायर है और ये जो पूरा टर्म है इधर डिग्री कितना है x क्यूब, नीचे भी डिग्री कितना है a क्यूब। तो आप एज्यूम कर सकते हैं अगर ऊपर नीचे दोनों में ही a क्यूब से डिवाइड करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके का फॉर्म मिलेगा। x बाई ए को कुछ और पकड़ लीजिए, क्या पकड़ेंगे, जो जिससे कि आपको एक फॉर्मूला मिले। ये जो फॉर्मूला है ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, इसीलिए x बाई ए को हमने tan थीटा पकड़ा है। Now tan inverse of tan 3 theta becomes 3 theta. Again theta का वैल्यू लास्ट में पुट कर दीजिए, you will get the simplest form. Now the next problem is this 11. बीच में जो गैप है वो वाला क्वेश्चन सेम है, वो आप खुद करेंगे सॉल्व। 11 इज आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। ब्रैकेट में एकदम लास्ट में जो अंदर जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में जो वैल्यू है उधर से हम स्टार्ट करेंगे हमेशा। ये जो साइन इनवर्स हाफ है इसका वैल्यू क्या है, पाई बाई 6। आपको पता है साइन पाई बाई 6 इज हाफ, तो साइन इनवर्स हाफ इज पाई बाई 6। 2 एंड पाई बाई 6 को कैंसिल करके आया पाई बाई 3, तो ये हो गया 2 cos पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 का वैल्यू पुट किया हाफ, 2 हाफ कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1 जिसका वैल्यू आता है पाई बाई 4। वेरी इजी प्रॉब्लम,
पहला वाला सिलेक्ट किया है वो इजी होता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। इधर आप स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर दीजिए, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज पाई बाई 2, वो यूज़ कीजिए तो cot पाई बाई 2 एंड द वैल्यू ऑफ cot पाई बाई 2 इज 0। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इसका भी वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग थिंग ऐसे करके लिखा है। तो इधर जो रेस्ट्रिक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों जो टर्म है उसका एक फॉर्मूला है। साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 2 tan इनवर्स x, जहाँ पे मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 1 होगा, इक्वल टू साइन भी इधर होगा, मैं भूल गई। नाउ इधर लेस देन और इक्वल टू दोनों में से एक है, मॉड x इज लेस देन इक्वल टू, देयरफॉर आप इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स x। सिमिलरली y का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और जो प्रॉपर्टी जो है उसका जो फॉर्मूला है उधर भी y का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन, तो कॉमा होगा ये, कॉमा y ग्रेटर देन 0। तो 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, कॉमा y ग्रेटर देन 0। y ग्रेटर देन 0 है कि नहीं आप चेक कर लीजिए, हाँ रेस्ट्रिक्शन है, देयरफॉर cos इनवर्स ये जो टर्म है इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y। फिर दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लिया हमने, 2.5 कैंसिल हो गया। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक फॉर्मूला है वो लिख दीजिए। कब होगा याद कीजिए, जो फॉर्मूला है प्रॉपर्टी में लिखा था कॉमा देखिए x इंटू वाई इज लेस देन 1 होगा, ठीक है। देयरफॉर वो गिवन है क्वेश्चन पेपर में, तो इसके लिए ही हम ये वाला लिख सकते हैं, अदरवाइज ये वाला हम नहीं लिख पाते, ठीक है। तो tan ऑफ tan इनवर्स दिस, tan और tan इनवर्स कैंसिल होके ये वाला वैल्यू आया है। Now the next problem is sine of sin inverse 1 by 5 plus cos inverse x is given, you have to find out x. How to find that? साइन को सिंपल इस तरफ लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स 1 होगा, उसका वैल्यू है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बिकम्स साइन इनवर्स 1 बाई 5। इक्वेशन से कॉस इनवर्स एक्स को इस तरफ लेके आए। ना ये वाला जो चीज़ है हम इधर क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये जो टोटल वैल्यू है इसका, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स एक्स। therefore sin inverse 1 by 5 becomes sin inverse x, therefore x is equal to 1 by 5. next problem is find the value of this thing, ठीक है। अभी हमको क्या पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि देखने में लग रहा है इधर साइन है इधर साइन इनवर्स है तो कैंसिल होके तो आंसर 2 पाई बाई 3 होगा। जो 2 पाई बाई 3 लिख के आएंगे उनको मिलेगा 0। क्यों 0 मिलेगा, बिकॉज 2 पाई बाई 3 इज नॉट विद इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो ये 2 पाई बाई 3 को पहले ये जो वैल्यू ब्रांच है इसके अंदर लेके जाना होगा, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स के अंदर लेके जाना होगा। तो कैसे लेके जाएंगे, यू कैन राइट 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3, साइन ऑफ दिस बिकम्स साइन पाई बाई 3। अभी पाई बाई 3 आ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर, देयरफॉर साइन एंड साइन इनवर्स कैंसिल हो सकता है एंड द थिंग विल बी पाई बाई 3। इधर आप दिखा दीजिए, एक लाइन पे हो जाएगा, पाई बाई 3 बिलोंग्स टू दिस, देयरफॉर दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18. Question number 17 is same as 16, so you can do by yourself. 18 में आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए इधर एक है साइन इनवर्स, दूसरा है कॉट इनवर्स, बाहर कौन है tan। तो tan के अंदर मतलब ये जो वैल्यू है इसको अगर tan इनवर्स समथिंग में एक्सप्रेस कर पाएंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो कर कैसे सकते हैं, कॉट इनवर्स से tan इनवर्स आ जाएगा, लेकिन साइन इनवर्स से tan इनवर्स लाने के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं।
ये जो दिक्कत कर रहा है साइन इनवर्स समथिंग, इसको थीटा पकड़ लीजिए। तो साइन थीटा बिकम्स 3/5। 3/5 क्या है? 3 इज हाइट एंड 5 इज हाइपोटेनस। देयरफॉर बेस निकल जाएगा यूजिंग पाइथागोरस लॉ। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बेस आ गया 4। ठीक है, देयरफॉर वी नो दैट tan थीटा इज हाइट बाई बेस, मतलब 3/4। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? tan इनवर्स 3/4। तो ये जो दिक्कत कर रहा था इसका वैल्यू हमने थीटा पकड़ा था, थीटा के जगह पे हम लिखेंगे नॉट साइन इनवर्स 3/5 बट tan इनवर्स 3/4 लिख दीजिए। देन यू विल गेट tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग। इसका कौन सा फॉर्मूला है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई, वेर एक्स वाई इज लेस 1। इधर आप देख लीजिए 3/4 इंटू 1/2, सॉरी 2/3, इसका जो कैलकुलेशन है इसका वैल्यू लेस देन 1 होता है, हाफ होता है। ठीक है, कैलकुलेट करके आप देखिए। सिंस x इंटू वाई इज लेस देन 1, इसीलिए हम ये लिख रहे हैं। ये कैलकुलेट कीजिए, यू विल गेट tan इनवर्स 17/6। tan of tan inverse something, so you can cancel out these two things and the value will be 17/6. Now question number 18, 19, 19, 20 and 21 ये MCQs है। 19 में भी वही आपको cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखना है। 20 वाला प्रॉब्लम में साइन इनवर्स हाफ, आप देख लीजिएगा, उधर उसका वैल्यू निकालना है। और 21 इज अनदर MCQ, आप खुद सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू।